Hi, this is Aslam Charani, and I am the business multiplication coach helping SMEs achieve exponential growth in their businesses. I am also the founder of M Square, an organization that provides training and consultancy services to small and mid-sized businesses. I am extremely grateful and I thank you from the bottom of my heart for connecting with me, for trusting me, and for watching this training module on 7 mental hurdles that block the multiplication of your business. I have worked with SMEs for last 15 years, and in last 15 years I have addressed around 150,000 plus entrepreneurs across the country, and all these 150,000 entrepreneurs are from SME segment. I've delivered 400 plus open public seminars and speeches, and also have trained 3,000 plus entrepreneurs through short and long term training modules on business management and leadership. Again, all these entrepreneurs are from SME segment. I've also been fortunate to work with 100 plus enterprises in last 15 years as their business consultant or strategic coach. And this rich experience of 15 years delivering talk to entrepreneurs, training them through training modules, and working with them as consultant, I know both side of the story, and the two sides are, one is the entrepreneur's side of story and the business side of story. So organization is different and entrepreneur is different. Organization's capability are different and entrepreneurs capabilities are different. Organization's challenges are different and entrepreneurs challenges are different. So because I have worked with both, I have trained entrepreneurs and I have worked with organizations as consultant, has exposed me to all possible issues and challenges faced by SME segment, SME entrepreneurs. And also it has helped me to understand the root causes of those problems, of those challenges. And based on this experience, I understood that our SME does not have problem of lack of opportunities. Rather, our problem is little different. Our problem is about lack of courage. Our problem is about lack of skills. Our problem is connected to lack of information, lack of risk-taking ability. So, understanding both sides of the story, I have developed this short module which talks about 7 mental hurdles that can stop you from multiplying your business. My promise to the market is whoever connects with me will achieve multiplication of growth. I am here to multiply your profits. I am here to multiply your growth. I am here to multiply your freedom. I want to set you free from business routine so that you can work on expansion, you can work on networking, you can work on learning. So multiplication of your freedom, at the same time multiplication of your overall success and happiness. This is what my promise is. If you connect with me, this is what I want to deliver. This is what I am experienced enough to deliver. This is what I aspire to deliver. So apart from whatever I've shared with you, one very important piece of information that I missed is I am also the author of 4 business books. 3 of them belong to a series called Business Stories. So my first edition was Business Stories from Surat, which had 16 entrepreneurial success stories. Then I had Business Stories Hyderabad edition, which had 12 success stories of SME entrepreneurs. Recently we have published Business Stories from Saurashtra, which is in Gujarati language as of now, but would be soon available in English and Hindi. And it has 23 stories of SME entrepreneurs, those entrepreneurs who started from zero and have achieved something meaningful in their lives. And lot of national brands
fall into this category, and this book has stories of, say, Kayam Churna, it has story of Ban Labs, it has Evra Labs, it has Ratnadeep Supermarket, Hyderabad, which is probably among the top 5 profitable organized retailers in the country. So these books has stories which through these stories, these entrepreneurs have shared their entire life experience, the challenges they faced, the problems they faced, how they overcome those challenges, and whatever success they have achieved, what has made this possible for them. So yes, so one of the fortunate opportunities of my life was to interact with these entrepreneurs, interview them, understand what made them successful, grasp those ideas, and also write it in through book, make it accessible to people through books, but also through my all these seminars and talk that I deliver. I share the examples from these stories to help people understand that if you want to succeed, this is what the people who have already succeeded had done, so you can also learn from them and implement in your life. So whatever I'm going to share in this module or through all the content that I've developed till date is based on my 15 years of experience and also the learnings that I derived by interviewing these entrepreneurs for this book. So now let's talk about 7 mental hurdles. But before I talk about 7 mental hurdles, the most important question is, क्या इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है? क्या इंडिया में इतना ग्रोथ पोटेंशियल है कि हज़ारों लाखों करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स को ये उनकी ग्रोथ नीड को सेटिस्फाई कर सके? सो आई हैव टेकन दिस स्टेटमेंट फ्रॉम report published by PricewaterhouseCoopers, and this report was published by them on Indian economy and its future. और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले दे हैव डन 20 month long रिसर्च ऑन इंडिया, और ये रिपोर्ट इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि इंडिया का ओवरऑल डेमोग्राफी क्या है, इंडिया की ओवरऑल सोशल सिस्टम क्या है, इस समय सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस दिशा में डेवलप हो रहा है इंडिया, एंड उसके साथ साथ ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में उसकी इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे क्या होगी, रिटेल पे क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या होगी, एसएमई पे क्या होगी. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट. और उस पूरी रिपोर्ट के अंदर ऑफ कोर्स उसकी जो समरी है उसमें ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था विच रियली टुक मी बाय ये स्टेटमेंट मेरे गूज़बम्स खड़ा कर देता है ऑनेस्टली. And that statement is, today India is on the verge of one of the greatest achievements in economic history. One of the greatest achievements दुनिया के इतिहास में, दुनिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में शायद ही किसी देश ने कम समय में इतनी ज़्यादा तरक्की की होगी. भारत ऐसी तरक्की के द्वार पर खड़ा है. नाउ इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट इंडिया. ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये स्टेटमेंट. बट क्या ये स्टेटमेंट ऐसे ही दिया गया है या इसके पीछे कोई ठोस प्रूफ है हमारे पास? सो आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट इंडिया, इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया एज अ कंट्री, ताकि हम सब समझ सके कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बाय PricewaterhouseCoopers, ये स्टेटमेंट ऐसे ही हवा में क्रिएट नहीं किया गया है. इसके पीछे कुछ इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स है जिसकी वजह से ये इतने इंस्पायर होकर इतना कॉन्फिडेंटली इंडिया के बारे में ये स्टेटमेंट दे पाए हैं. सो लेट्स सी व्हाट्स सो गुड अबाउट इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसे क्या फैक्ट है जिसकी वजह से PricewaterhouseCoopers जैसी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एजेंसी ने ये स्टेटमेंट भारत के लिए दिया है. So India, today we are one of the fastest growing economy of the world. Now fastest growing economy is like इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा GDP भारत का है. So अगर कोई कंट्री 5 पॉइंट से ग्रो कर रहा है तो हम 5 पॉइंट, या कोई सेकेंड कंट्री 5.5 से कर रही है तो हम 6+ पे ग्रो कर रहे हैं एवरी ईयर. और हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है चाइना.
पिछले 3 सालों में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट चाइना से बेटर रहा है. सो इस समय वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी चाइना थी, अब चाइना से फास्ट हम ग्रो कर रहे हैं. ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन. काफ़ी कंट्रीज़ है जो क्वार्टर वाइज हम देखेंगे तो कभी भारत से बेहतर जीडीपी होता है उनका, लेकिन ओवरऑल लास्ट 3 सालों में दुनिया का सबसे हाईएस्ट जीडीपी भारत का रहा है. नंबर 2, बाय 2030 वी विल हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा. सो हमारे पास इस समय 135 करोड़ की जनसंख्या है और ये 135 करोड़ लोग ये कंज्यूमर्स हैं. ये रोज कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं. सो बाय 2030 इट इज एक्सपेक्टेड दैट विल हैव 160 करोड़ प्लस पॉपुलेशन. दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्राहक भारत के पास होंगे और इन ग्राहकों के साथ बिजनेस करने के लिए हर छोटी बड़ी कंपनीज फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम एवरी कॉन्टिनेंट ऑफ द ग्लोब इंडिया में इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडियन कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच के अपनी अर्निंग्स करना चाहेंगे. सो दिस विल ऑल्सो अट्रैक्ट लॉट ऑफ FDIs एंड FIIs इन इंडियन मार्केट. थर्ड, वी आर द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड विल रिमेन द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टिल 2050 तक. भारत दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री होगा. नाउ हमारी एवरेज एज इस समय 25 से 27 के बीच में है. हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है चाइना, जिसकी है 36 साल. जापान इज 46.5, US इज 44.5 एवरेज एज. हमारे यहाँ सिर्फ 7% पॉपुलेशन रिटायर्ड कैटेगरी में है, जबकि US में 26% लोग रिटायर्ड है. सो यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हैं. वो यंगस्टर्स जो बहुत कॉन्फिडेंट है, जो बहुत पॉजिटिव है, जिनके पास अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है बहुत सारा पैसा कमाने के लिए और उसे स्पेंड करने के लिए. नाउ यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड से क्या एडवांटेज होगा, उसका एक छोटा सा ग्लिम्स आपको दे दूँ. अगर किसी 60+ की एज के इंसान के पास 1 लाख रुपया हो तो वो उसे FD करेंगे, चाहे उसमें 3% एनुअल रिटर्न मिलेगा तो भी, क्योंकि वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी माइंडेड होंगे. वही 1 लाख रुपया अगर आप 40-45 की एज कैटेगरी के इंसान को दोगे तो वो उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनके पास अभी है. अगर 1 लाख रुपए का कहीं लॉस हो भी गया तो कमाने के लिए इनके पास और 20 साल है. तो ये इक्विटी में, जहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, ये वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे. लेकिन यही 1 लाख रुपया अगर आप एक यंगस्टर को दे दो तो वो क्या करेगा? लोग बोलते हैं कि वो स्पेंड करेगा. मैं बोलता हूँ कि वो 1 लाख रुपया लेके डाउन पेमेंट देगा और सामने 10 लाख की चीज़ खरीदेगा और EMI भरेगा. सो यंगस्टर के पास अगर 1 रुपया हो तो वो 10 रुपये का खर्चा करता है. उसके पास 1 रुपया होना चाहिए, क्योंकि इनके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है पैसा कमा के EMI भरने के लिए. उनके पास करियर पड़ा है. सो हमारे पास ऐसे यंगस्टर्स ज़्यादा हैं जो अपनी अर्निंग से ज़्यादा स्पेंड करेंगे. तो इंडिया में जो कंज्यूमरिज्म है उसको और बढ़ावा मिलेगा और इससे इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अगर एक 60+ का इंसान किसी रेडीमेड गारमेंट की शॉप में जाएगा और उसे शर्ट खरीदना है, तो अगर वो 3 शर्ट खरीदेगा तो उसका बिल बनेगा 2000 रुपये. पहले तो वो 3 शर्ट खरीदेगा नहीं, ज़रूरत होगी तो एक ही लेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई अब आगे लाइफ ख़त्म होने वाली है, अननेसेसरी क्यों परचेस करना है. सो वो 3 शर्ट खरीदेगा नहीं, और ख़रीद भी लिया तो वो 2000 का बिल बनाएगा. अगर यही 3 शर्ट 40 से 45 से 50 की एज का इंसान लेगा तो उसका बिल बनेगा 5000 का, क्योंकि वो थोड़ी अपग्रेडेड ब्रांड के कपड़े खरीदेगा. और यही अगर एक यंगस्टर जो करीब 20-25 साल की उम्र का है, अगर ये किसी गारमेंट स्टोर में जाएगा तो ये भी 3 शर्ट खरीदेगा, लेकिन उसका बिल बनेगा 10,000 रुपये, क्योंकि वो प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स की खरीदेगा. सो ये फ़र्क है. जब आपके पास यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है तो आपके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा यंग कंज्यूमर्स हैं, और ये यंग कंज्यूमर्स हम सोच नहीं सकते इतनी टाइप की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे. बट प्रॉब्लम इज हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अगर पहले से ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहे थे जो 700, 800, 1000 रुपये की प्रोडक्ट है, तो वो वही बना रहे हैं. 20 साल पहले भी वही बना रहे थे, अब भी वही बना रहे हैं. सिर्फ जो कंपेरेटिव रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है उतना ही उनका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा है. ये आज भी यही समझते हैं कि इंडिया में सस्ती रेट का
मॉडरेट क्वालिटी का माल ही बिकेगा। लेकिन इंडिया में अब यंगस्टर्स बढ़ चुके हैं, इंडियन मार्केट बदल रहा है, इंडियन मार्केट इवॉल्व हो रहा है, बट इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी for our country as we have the youngest population of the world. Now 2050 तक हम youngest country of the world रहेंगे। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। चाइना ने हमारा एक की पॉलिसी अप्लाई की थी आज से करीब 25-30 साल पहले, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और उनको संभालना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उनके लिए। बट इंडिया ने हमारे 2 की पॉलिसी अप्लाई की थी, और यहाँ 2 से ज़्यादा बच्चे हो तो भी कोई इट्स नॉट अ लीगल ऑफेंस। सो हमारे यहाँ बच्चों का प्रोडक्शन चलता ही रहा। आज भी इंडिया में हर साल 2,60,00,000 नए बच्चे पैदा होते हैं, यानी 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है। 2.5 करोड़ नए ग्राहक हमारे इकोनॉमी में जुड़ते हैं एवरी ईयर। सो चाइना का ग्रोथ रुका तो अभी जैसे उनके यहाँ यंगस्टर कम और सीनियर पॉपुलेशन ज़्यादा है, एंड चाइना अंडरस्टूड कि क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट किया, आज उनके पास मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लेबर कम पड़ रहे हैं। नाउ दे अंडरस्टूड कि वर्कफोर्स कम होगी तो लेबर चार्जेस बढ़ेंगे, तो जो एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज था उनके पास, वो धीरे धीरे इरोड हो रहा है और उनके प्राइसेस भी अब जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो दे हैव नाउ स्टार्टेड इनकरेजिंग देयर सिटीजन्स टू हैव मोर देन 1 किड। बट क्योंकि अब वहाँ की पब्लिक एक बच्चे से सेटल हो चुकी है और उनका माइंडसेट बन चुका है, अब गवर्नमेंट इनकरेज भी करेगी तो ये ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। जबकि इंडिया, हमारे यहाँ प्रोडक्शन चालू ही है, और इस समय हमारी एवरेज एज, क्योंकि मैंने कहा 25 से 27 के बीच में है और चाइना की 36। अगर चाइना इस अभी प्रयास करके अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को या एक से ज़्यादा बच्चों की पॉलिसी को इनकरेज भी करेगा, तो उन बच्चों को जन्म लेने के बाद यहाँ से ग्रोथ रेट बढ़ते बढ़ते भी 2050 तक तो ये इंडिया को मैच नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ एवरेज एज। सो वी आर गोइंग टू रिमेन द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टिल 2050। वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट SME हब विथ लेस इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। दुनिया में सबसे ज़्यादा SME एंटरप्राइजेस इंडिया में है। 6,32,00,000 एंटरप्राइजेस है इंडिया में, SME लार्ज सारे मिला के। सो सबसे ज़्यादा SME एंटरप्राइजेस इंडिया में है और ये हमारी GDP में करीब 45% का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है कि क्योंकि हम चाइना की तरह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं है और हमारे यहाँ लार्ज कॉरपोरेट्स इतने नहीं है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कहती है। लाइसेंस राज था, वो उन्होंने अबॉलिश कर दिया। अब यहाँ फ्री मार्केट, फ्री एंटरप्राइज सिस्टम है, जहाँ पे कोई भी इंसान कभी भी अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, एक्सेप्ट फ्यू रेयर रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट कैटेगरीज। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, आपको अपनी मर्जी से बिजनेस करने की परमिशन है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसको कभी भी बंद कर सकते हो। यस, ऑफकोर्स आपको अपनी लायबिलिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, बट यहाँ गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती एक्सेप्ट द पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप बाय देम। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब ऑफ द वर्ल्ड। नाउ बहुत कम लोगों को ये पता है कि दुनिया में जितने स्टार्टअप हर साल लॉन्च होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्टार्टअप लॉन्च होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड सेकेंड नंबर पे भारत है, चाइना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फ्री मार्केट सिस्टम नहीं है। सो हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा नए स्टार्टअप लॉन्च होने में वी आर एट नंबर 2। बहुत कम लोगों को ये पता है। बाय 2030 वी विल हैव द सेकेंड लार्जेस्ट पूल ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स की लिस्ट में हम नंबर 2 पे होंगे बाय 2030। यानी हमारे पास क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। And it is said that 21st century is the century of engineers। और हमारे यहाँ सेकेंड लार्जेस्ट पूल ऑफ इंजीनियर्स होगा पूरी दुनिया में। We have the largest pool of entrepreneurs। 6,32,00,000 से ज़्यादा SME एंटरप्राइजेज है इंडिया में। चाय वाला भी एक एंटरप्राइज है, किराना शॉप भी एंटरप्राइज है, रिलायंस भी एंटरप्राइज है। तो छोटे बड़े सभी मिला के करीब 6,32,00,000 बिजनेसमैन छोटा बड़ा अलग अलग साइजेस के बिजनेस चला रहे हैं। सो इंडिया में, एंड किसी भी देश के पास, कई देशों की तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने हमारे पास बिजनेसमैन हैं। सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास है, एंड इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज।
एंटरप्रेन्योर्स की कैपेसिटी बहुत है, ये चाहे तो एक देश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो एंटरप्रेन्योरल जील, entrepreneurial ecosystem, entrepreneurial drive, the ability to take risk, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है. By 2030 we are expected to be $10 trillion economy, जो अभी है $2.6 trillion, 2.6 to 2.8, ऑलमोस्ट हम लोग 3 ट्रिलियन पे पहुंचे, 3 ट्रिलियन के आसपास है अभी. सो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 10 साल में बनेगी, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी. एंड दिस इज ह्यूज. ये बहुत बड़ा जंप है. आज़ादी के करीब 64 साल बाद सन 2011 में हम पहली बार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने थे, जो आज हम ऑलरेडी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचे पिछले 9 सालों पे. और यहाँ से हम $7 ट्रिलियन और ऐड करेंगे एंड विल बी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी. ये बहुत बड़ी क्वांटम लीप है एज अ कंट्री इंडिया के लिए. वी आर एक्सपेक्टेड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030. सो द मोमेंट वी बी द $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं. जब मैंने 2007 में अपनी पहली किताब लिखी थी रिटेल महायुद्ध, तब जो मैंने इंडियन इकोनॉमी के बारे में फैक्ट्स स्टडी किए थे, वी वर द 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड 2007 में. टुडे वी आर 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. तो पिछले 12-13 सालों में हम 12वें स्थान से 6ठे स्थान पर पहुंचे हैं, और यहाँ से अगले 10 साल में विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ इंडियन मार्केट. आपको अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना या समझना हो कि इंडियन मार्केट में क्या पोटेंशियल है और हम उसको कैसे एनकैश कर सकते हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड एक्सेस माई यूट्यूब चैनल. और वहाँ पर एक पूरा 3 घंटे का सेमिनार वीडियो हमने बाकायदा अपलोड किया है, और उस सेमिनार का नाम है भारत सोने की चिड़िया. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो, ताकि आप समझ सको. वहाँ पे हमने और ज़्यादा डिटेल में इंडियन इकोनॉमी के पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया हुआ है. सो प्लीज़ गो एंड एक्सेस दैट. नाउ कमिंग बैक टू, हमने डिस्कस किया कि इंडियन मार्केट का पोटेंशियल क्या है, बट एट द सेम टाइम नाउ लुक एट हमारी करंट एसएमई की हालत क्या है इंडिया में. स्पेशली 97% बिजनेसेस इंडिया में 10 साल भी नहीं टिकते. जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आर इकोनॉमी इज मल्टीप्लाइंग, वी आर गोइंग टू बी द $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी आर गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट हाई है दूसरों से, तो फिर 97% एसएमई एंटरप्राइजेस फेल क्यों हो रहे हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन. जितने स्टार्टअप्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब ऑफ द वर्ल्ड, बट आर 90% स्टार्टअप्स डज नॉट इवन सर्वाइव फॉर 3 years. 90% स्टार्टअप 3 साल के अंदर बंद हो रहे हैं, और ये ह्यूज लॉस है. इसके अलावा इकोनॉमी में इतना पोटेंशियल होने के बावजूद जितने भी ये 6.32 करोड़ एंटरप्राइजेस जो है इंडिया में, इसमें 90% आर माइक्रो. माइक्रो का मतलब है इनके पास 10 आदमियों का भी स्टाफ नहीं है. 20 साल पहले, 30 साल पहले 300 स्क्वायर फीट की एक रिटेल स्टोर स्टार्ट की थी, आज भी उसी शॉप में बैठे हैं. ग्रोथ नहीं हुआ है, एक्सपांशन नहीं हुआ है. 20 साल पहले एक वर्कशॉप स्टार्ट किया था, 15 बाय 15 का शेड था, आज भी उसी शेड में बैठे हुए, वहाँ से आगे नहीं बढ़े. ऐसे हमारे पास 90% एंटरप्राइजेस हैं. जस्ट इमेजिन हमारे यहाँ कितना हाई मीडियोक्रिटी एंड फेलियर रेट है. दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन होते हुए भी जो इसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ यू लुक एट जापान, जो साइज में महाराष्ट्र जितना भी नहीं है, लेकिन जापान से कितनी मल्टीनेशनल ब्रांड निकली. रीज़न था, जब जापान पर बॉम्ब गिराए गए, जापानीज एंटरप्रेन्योर्स ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम इस बॉम्ब का जवाब बॉम्ब से नहीं देंगे. हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपने इंजीनियरिंग एक्सीलेंस को, अपने स्किल्स को यूज़ करेंगे और ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएंगे कि यूएस में जाके यूएस कंपनी को हराएंगे और यूएस कंज्यूमर जापानीज प्रोडक्ट यूज़ करेंगे. और उन्होंने ये करके दिखाया.
सो ये जो पेट्रियाटिज्म था उन एंटरप्रेन्योर्स में, देश के लिए कुछ करना, देश की ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करना, देश की कंपनीज को इंटरनेशनल ले जाना, ये जो ड्राइव होती है, महाराष्ट्र से भी छोटा जापान हमसे वो इस समय 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, हमसे आगे है, एंड हम लोग वी आर एट 6th पोजिशन राइट नाउ. सो देयर इज अ ह्यूज गैप. इनफैक्ट जापानीज इकोनॉमी साइज इज $4.5 trillion एंड वी आर एट 2.6 और 2.8. सो जापान साइज में छोटा है, लेकिन यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स का कमिटमेंट लेवल बहुत अलग है, क्वालिटी को लेके, अपने स्किल्स को लेके, इनका इंजीनियरिंग जो नॉलेज है, ये जो भी करते हैं ये राइट फर्स्ट टाइम की पॉलिसी में बिलीव करते हैं. आज दुनिया के जितने भी क्वालिटी एक्सीलेंस के जितने भी पैरामीटर्स है, चाहे वो कैजान हो, सिक्स सिग्मा हो, लीन मैनेजमेंट हो, लीन मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जापान ने दुनिया को दिए हैं, जापानीज कंपनीज ने दिए हैं. सो हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स बहुत है, लेकिन एवरेज मीडियोकर. ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस करने का एक ही पर्पस है कि सम हाउ घर चल जाए, बच्चे बड़े हो जाए, और रिटायरमेंट के लिए 1-2 प्रॉपर्टीज लेके अगर हम भाड़े पे दे दें और पैसिव इनकम आ जाए तो बस हमारी लाइफ सफल. सो हमारे यहाँ बहुत छोटा सोचने वाले, मीडियोकर माइंडसेट वाले, मीडियोकर थॉट प्रोसेस वाले, बहुत ही छोटा सीमित विजन एंड गोल लेके चलने वाले एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा है. इसीलिए इतना ज़्यादा पोटेंशियल है इंडियन इकोनॉमी का, फिर भी हम उसको एनकैश नहीं कर पाते. रादर मल्टीनेशनल्स ने इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करके उसका हमसे ज़्यादा फायदा उठाया है. नाउ इट इज़ आवर टर्न. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कोर टॉपिक. मैंने इंडियन मार्केट का पोटेंशियल इसलिए आपको समझाया कि अगर आपने ये 7 मेंटल हर्डल्स को पार कर लिया तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज का समंदर है, आप उसको एनकैश कर सकते हो. सो लेट अस गो थ्रू ऑल द 7 मेंटल हर्डल्स जो आपको बिजनेस मल्टीप्लाई करने से रोकते हैं. हर्डल नंबर 1, ईगो. नाउ हम कहेंगे कि भाई ज़्यादातर लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे ईगो है. ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत ही हम्बल इंसान हूँ और मुझ में ज़रा भी ईगो नहीं है. लेकिन ज़्यादातर हम जो एसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, उनको ईगो की प्रॉब्लम बहुत है. और हम में ईगो है कि नहीं उसको समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ. अगर आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हो और कोई इंसान अगर आपकी कार को या आपके 2 व्हीलर को ओवरटेक करता है, तो तब आपका रिएक्शन क्या होता है? हमारा ईगो हर्ट हो जाता है और हम उसको पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं. हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हमसे आगे चला जाए. नंबर 2, अगर कोई हमारे आइडिया को रिजेक्ट करता है या कोई हमें सलाह देने की कोशिश करता है, तो हमको लगता है मुझे सब आता है. ये नॉलेज का ईगो है. सो हमको जल्दी से किसी की एडवाइस पसंद नहीं आती. हमारा ईगो हट हो जाता है अगर किसी ने हमारे आइडिया को रिजेक्ट किया तो. सो ईगो इज नंबर 1 मेंटल हर्डल. मैं क्योंकि ये 7 मेंटल हर्डल्स पे एक के बाद एक 7 वीडियोस में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस समय ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ. आई जस्ट take you quickly through all 7 mental hurdles and then we will quickly move on to the next video and one by one we will discuss about these mental hurdles कि business में ये आपको कहाँ पर नुकसान पहुँचा सकते हैं या पहुँचा रहे हैं. Number 2 issue is fear and insecurities. हमें पता नहीं किस बात का डर है. कुछ पाने की खुशी से ज़्यादा, कुछ पाने की उम्मीद से ज़्यादा, कुछ पाने के एक्साइटमेंट से ज़्यादा कुछ खोने का डर हमें सताता है. हम बहुत ही इनसिक्योर हैं. हम अपनी कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते. सो दैट्स अ सेकेंड प्रॉब्लम. थर्ड इज वी आर ओवर पॉसेसिव. पॉसेसिव यानी मेरा बिजनेस है तो सारे डिसीजन मैं ही लूँगा, मुझसे पूछे बिना ये क्यों किया. और अगर आपके किसी स्टाफ ने गलती से कुछ अपनी सूझबूझ के हिसाब से डिसीजन लिया तो हम उससे डांटते और हम पूछते हैं कि आपको किसने 1.5 छाना बनाया था कि आपने ये किसको पूछ के इम्प्लीमेंट किया, मुझसे क्यों नहीं पूछा. हमें बुरा लग जाता है. सो ये जो पजेसमेंट है ये हमारे तीसरा मेंटल हर्डल है. हम इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. व्हेन यू कीप वॉचिंग, हम 1 by 1 जब डिस्कस करेंगे आप रिलेट कर पाओगे कि इसमें से मेरी प्रॉब्लम कौन सी है, ऐसे कौन से मेंटल हर्डल्स हैं जो मेरी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने से मुझे रोकते हैं. 4th इज डायरेक्शनलेस. हमारे पास
ना कोई क्लियर गोल है, ना कोई क्लियर विजन है, हमें पता ही नहीं कि हमें जाना किस दिशा में है, हमें कहाँ पहुँचना है, 5 साल में बिजनेस को कहाँ पहुँचाना है, 10 साल में कहाँ पहुँचाना है। जब आपको पता ही नहीं कि आपको चाहिए क्या, तो आपको मिलेगा कैसे। हम दिशाहीन बिजनेस करते हैं, रोज सुबह घर से निकलते हैं, रोज शाम को घर आते हैं थक हार के, फैमिली का टाइम सेक्रीफाइस करते हैं, बच्चों के साथ खेलने को नहीं मिलता है, खुद की हेल्थ पे ध्यान देने को नहीं मिलता है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, प्रेयर नहीं कर पाते, सोशल फंक्शन अटेंड नहीं कर पाते। इतना बिजी रहने के बाद भी हम ज़्यादा सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। तो जब तक आपको पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, मिलेगा कैसे। सो डायरेक्शनलेसनेस हमारा चौथा मेंटल हर्डल है। मेंटल हर्डल नंबर 5 इज अनऑर्गेनाइज्ड। स्वामी विवेकानंद जी का एक स्टेटमेंट है, वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपको ज़्यादातर समय पे ये लगता है कि आपके पास समय नहीं है, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। हम सबकी प्रॉब्लम क्या है, किसी की शादी में जाना है तो हम वाइफ को बोलते हैं कि तू जाके आ, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। बच्चों के साथ कहीं बाहर जाना है, हम व्यस्त हैं। समाज का कोई काम है, हमको जाना है तो हम व्यस्त हैं। व्यापारी ट्रेड एसोसिएशन की मीटिंग में जाना है तो हमें लगता है हम बहुत बिजी हैं, हम नहीं जा पाएंगे, हम व्यस्त हैं। प्रेयर करना है तो टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करना है तो टाइम नहीं है। ज़्यादातर समय पे हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, और जो लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कर नहीं पाते। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर आपको ज़्यादातर समय पे ये लगता है कि आप व्यस्त हो, तो आप व्यस्त नहीं हो, आप अस्त व्यस्त हो, आप अनऑर्गेनाइज्ड हो। आपको टाइम का प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज तरीके से टाइम का यूज़ कैसे करना है वो नहीं आता है। सही प्रायोरिटीज़ को सही समय कैसे दिया जाता है, उसके लिए आपने अपने टाइम को ऑर्गेनाइज नहीं किया है। आपका कोई शेड्यूल नहीं है, आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए लाइफ में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो करने का आपके पास समय नहीं है। आवर 5th मेंटल हर्डल इज अनऑर्गेनाइज्ड। वी आर अनऑर्गेनाइज्ड, हम अस्त व्यस्त हैं। 6th है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, इसको अज्ञानता भी कहेंगे। बहुत कुछ सीखना ज़रूरी होता है एक बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए। एक बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए हमें मार्केटिंग का नॉलेज, ब्रांडिंग का नॉलेज, फाइनेंस मैनेजमेंट का नॉलेज, अकाउंटिंग के बेसिक्स, स्टाफ मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, लीन मैनेजमेंट, और भी न जाने कितने सब्जेक्ट्स के बारे में जानना होता है। बिजनेस प्लानिंग के बारे में, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के बारे में, सेल्स ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के बारे में, सेल्स चैनल मैनेजमेंट के बारे में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का जब थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमको होता है तो उस नॉलेज का यूज़ करके हम बिजनेस को चलाते हैं। अलग अलग सिचुएशन में हम उसे स्टीयर करके बाहर निकालते हैं और अपने ग्रोथ को अचीव करते हैं। बट इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, उसके सामने हमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। हमको सिर्फ इतना पता है कि ये चीज़ मैंने खरीदी इतने रेट में, प्रोडक्शन के बाद मुझे इतने कॉस्ट में पड़ी और मैंने इतने रेट में बेचा, मुझे इतना ग्रॉस मार्जिन मिला। अब वो जो ग्रॉस मार्जिन है उसको एक्सपेंस के साथ कैलकुलेट करके प्रॉफिट परफेक्ट एक्यूरेट आ भी रहा है कि नहीं, वी डोंट नो। बहुत कुछ सीखना ज़रूरी होता है एज अ बिजनेसमैन। हम सीखते नहीं है, हमको लगता है ये सब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें धंधा कौन सिखाएगा। तो जो ज़रूरी है उस नॉलेज को हम ही इग्नोर करते हैं, और इसी इग्नोरेंस की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये हमारा 6ठा मेंटल हर्डल है। एंड 7th है इनडिसाइसिवनेस। हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, और कई बार बिजनेस में डिसीजन नहीं लेने की वजह होती है या तो हमारा ईगो, या हमारा कुछ खो देने का डर, या हमारा ओवर पजेसमेंट, या तो हम ओवर बिजी हैं, या हमारे पास कोई विजन ही नहीं है। अब जब कोई विजन ही नहीं है तो हम कुछ नया क्यों करें, हम नए रिस्क क्यों ले। ये सारी, कभी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, कभी लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से, कभी लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है हमारे पास एज अ बिजनेसमैन, लेकिन हम ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ को टाइम पर सही डिसीजन लेके एनकैश नहीं कर पाते। हम लगातार यही सोचते रहते हैं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, प्रोफेशनल आदमी रखूं कि नहीं रखूं, मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, नए मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करूं कि नहीं करूं,
पुराने स्टाफ को निकालूं कि नहीं निकालूं, बस हम सोचते रहते करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। पर ज़्यादातर समय पे हम सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं ले पाते, और जब कुछ रेयर केस में 10-20% हम डिसीजन ले पाते हैं, तब वो भी इतना स्लो और इतना लेट कि वो सही डिसीजन भी गलत समय पे लिया जाए तो वो गलत डिसीजन होता है। एंड मोस्टली बिकॉज कि हम सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते, हम अपॉर्चुनिटीज को सही समय पर एनकैश नहीं कर पाते। सो ये 7 मेंटल हर्डल्स है जो आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने से रोकते हैं आपको। आई रिपीट ऑल द 7 मेंटल हर्डल्स: ईगो, फियर एंड इनसिक्योरिटीज, possessive nature, directionlessness, we are unorganized, ignorance, and most important, indecisiveness. कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते, और ये 7 मेंटल हर्डल्स है जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन इस समय एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे डिस्कस करना ज़रूरी है। ये 7 जो मेंटल हर्डल्स की बात मैंने आपसे की, ये सारे इनविजिबल है, इसलिए दिखाई नहीं देते, इनटेंजिबल है, और जो दिखता नहीं उस पर हमारा ध्यान जाता नहीं है। हमें पता ही नहीं कि ये 7 मेंटल हर्डल्स की वजह से हमें और हमारे बिजनेस को कितना नुकसान हो रहा है। हम लगातार बैंक से लोन लेते जा रहे हैं, सीसी लिमिट बढ़ा रहे हैं, वेंडर से क्रेडिट एक्सटेंड करते जा रहे हैं, नए कस्टमर बढ़ाते जा रहे हैं, मार्केट में ज़्यादा क्रेडिट दे दे के अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और सब कुछ करते हुए भी हमें जो ग्रोथ चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा। हो सकता है कि टेंजिबल रिसोर्सेज जो आपने डाले उसके साथ साथ इनटेंजिबल जो 7 हर्डल्स है, यहाँ पर भी अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हम ये 7 इनटेंजिबल चीज़ों पे काम करेंगे तो शायद हमारे जो टेंजिबल रिसोर्सेज हमने इन्वेस्ट किए उसका हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, बिजनेस में ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ज़्यादा फायदा होगा। सो ये 7 क्योंकि दिखाई नहीं देते, ये ज़्यादा डेडली है। जो दिखता नहीं उसके बारे में उसका हम इलाज नहीं करते, और उसका इलाज नहीं करते, बाद में एकदम क्रिटिकल कंडीशन में हम पहुंचते हैं जहां से फिर उस डिजीज़ को, उस बीमारी को रिवर्स करना नामुमकिन हो जाता है। ये वो कैंसर है जो 4th स्टेज पर ही पता चलता है, और कई बार तो इंसान मर जाता है और उसे पता ही नहीं होता कि उसे कैंसर था। तो ये जो इनविजिबल बीमारी है, ये इनविजिबल हर्डल्स हैं, ये हमारे बिजनेस को काफ़ी हद तक नुकसान कर रहे हैं, पर हमें इसके बारे में पता नहीं है। सो इट इज़ इनविजिबल एंड डेडली। सो आई एक्सपेक्ट कि मैंने जो आपके साथ ये इंडियन इकोनॉमी के पोटेंशियल के बारे में और 7 हर्डल के बारे में जो शेयर किया, यू आर रियली एंजॉइंग दिस स्टफ एंड यू आर एक्साइटेड टू डिग डीप इनटू ऑल 7 मेंटल हर्डल्स, और 7 हर्डल्स के बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो। इफ़ यू आर रियली लाइकिंग इट, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर योर कमेंट्स एंड फीडबैक विथ अस, राइट? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।